Good morning, students. Yesterday, I taught want of factor and association of the molecule. Now, today, I will teach dissociation constant of the acid or ionization constant of the acid. Now, derive the expression of dissociation constant of acid represented by Ka. And next, some numerical on the basis of want of factor, dissociation of the molecule and association of the molecule. So, dissociation constant of acid, expression of dissociation constant of acid represented by Ka. Similarly, also called ionization constant of acid or degree of ionization of the acid. Suppose acetic acid is a weak acid which is dissociated these dyes. Acetic acid is a weak acid which dissociated these dyes when dissolved in water. In aqueous medium, dissociation of acid, acetate ions and hydrogen ions. Applying law of mass action, similarly in class 11 ionic equilibrium chapter, applying law of mass action, हम लोग लगाते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यहां एसिड है कि एक कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट एंड हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मॉलिक्यूल COOH. So main value Ka. Now acetic acid dissociated into the acetate ion plus hydrogen ion. Initially 1 mole N00. After time the second dissociation alpha changing in equilibrium 1 minus alpha and alpha in the form of concentration C into alpha, where C equal to concentration equal to लिखते हैं N by V, number of mole per unit volume. So this value putting in this equation A, or Ka is equal to acetate acting as C into alpha by C into 1 minus alpha. ये देखिए यहां लिख रहे हैं A equal to C into alpha square 1 minus alpha. If acid is very weak, then 1 minus alpha is approximately equal to 1. वीक एसिड है तो उसको डिसोसिएशन वेरी निग्लिजिबल होंगे, बहुत धीरे. सो अल्फा का वैल्यू निग्लिजिबल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.
Now the value of Ke equal to C into alpha square by 1 or C into alpha square equal to Ka. So alpha equal to Ka by C का under root. And alpha is the degree of dissociation, degree of ionization, degree of dissociation. Degree of dissociation. Now the entire concept, entire derivation for the dissociation constant of acid. Okay. Now but C concentration C equal to N by V, putting the value of C in this equation, so alpha equal to Ka by N by V under root, or alpha equal to Ka into V by N under root. If N equal to 1 mole, then alpha equal to Ka into V अंडर और इस एक्सप्रेशन पर आपके न्यूमेरिकल हैं. एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन ऐड है. सो अब हम कुछ आपको क्वेश्चन दिखलाते हैं. Now question. So a solution containing 0.5 gram of potassium chloride dissolved in 100 gram of water freezes at minus 0.24 degree centigrade. Calculate the percentage ionization of salt and K for water is given. तो परसेंटेज आयोनाइजेशन निकालना मीन से सबसे पहला काम आपको करना अल्फा निकालने के लिए वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन I-1 by M-1 ये फॉर्मूला यूटिलाइज करें. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटम फैक्टर I. फॉर्मूला आप यूज करेंगे I is equal to normal molar mass by observed molar mass. Normal molar mass of potassium chloride 39 plus 35.5 equal to 74.5 is normal molar mass of potassium chloride. 74.5 by observed molar mass. How to calculate the observed molar mass? Formula use M equal to Kf into 1000 into a small w by a small m, delta Tf into capital W. So M is the observed molar mass. gram of water, 0.5 gram potassium chloride, small w equal to 0.5 gram and capital W is 100 gram. जब ये पोटेशियम क्लोराइड को डिसॉल्व किए हैं तो फ्रीजिंग एट, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मींस आपका हुआ TFS इक्वल टू -0.24 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. एंड TF freezing point of the solvent 0 degree centigrade. Now the delta TF equal to TF minus TFS. So 0 minus 0.24 degree centigrade equal to plus 0.24 degree centigrade is the delta TF. So value of delta TF putting in this equation. Now M equal to Kf वैल्यू पुट करेंगे. Kf का 1.86 into 1000 into a small w 0.5 and delta Tf 0.24 into capital W 100 gram.
सो इससे निकालेंगे आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और आप इसको कैलकुलेट करके 38.75 ये मोलर मास ऑफ एम आपके निकल। यही हुआ ऑब्जर्व मोलर मास। नाउ वैल्यू I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास 74.5 बाई 38.75 और ये डिवाइड किए आपकी वैल्यू ऑफ 1.92, ये वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आपकी है। मैंने कैलकुलेटर से अभी डिवाइड किया, आप देखेंगे इसको, ये वैल्यू आई का वैल्यू निकल गया। अब आई का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सो अल्फा इक्वल टू आई 1.i माइनस 1 बाई m माइनस 1, वैल्यू m इक्वल टू 2, कैसे 2, नंबर ऑफ पार्टिकल KCl पोटेशियम क्लोराइड, KCl डिसोसिएटेड इनटू K प्लस प्लस Cl माइनस, सो m इक्वल टू वैल्यू 2, ये पुट करेंगे। आपने रखा अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 बाई 1, सो अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1, अल्फा इक्वल टू आई का वैल्यू आया है 1.92 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0.92, ये अल्फा का है। अब यहां लिखते देखिएगा परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट 0.92 मल्टीप्लाई 100 मीन्स 92%, और आपका ये आंसर है। अब पूरा आप इस न्यूमेरिकल्स को देखिए तो कंसेप्ट मिलेंगे कैसे। क्वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू निकालना है, लेकिन किसके हेल्प से, इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की मदद से आप निकालेंगे पहले ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास से आप कैलकुलेट कर करके और आप निकाल लेंगे आई, और आई का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो फिर निकल जाएंगे अल्फा, और अल्फा से निकल जाएंगे परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। ओके ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो क्वेश्चन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देखिए आपके अमाउंट पूछ रहा है, आप चाहे नंबर ऑफ मोल में अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं या वेट में भी कर सकते हैं। आई का वैल्यू गिवन है, आई इक्वल टू 2.47, यहां गिवन है 2.47, dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmospheric pressure है and 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए पाई इज इक्वल टू 0.75 atm मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड T 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 273 मीन्स 300 Kelvin temperature, and given I value 2.47, dissolved in 2.5 liter of water, volume 2.5 liter 1। इसमें R की वैल्यू क्या करेंगे, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल per Kelvin, because the osmotic pressure is a unit used in atmosphere, so this value is used liter atmosphere per mole per Kelvin। अब आप देखिए आपको निकालना क्या, अमाउंट n इक्वल टू व्हाट। अब इसको आप अगर n इक्वल टू W बाई m में अगर पुट करना चाहते हैं, इस W का वैल्यू डिफाइन करेंगे तो आप ग्राम में वैल्यू न्यूमेरिकल का आंसर देंगे। फिर आप m यहां पर रखेंगे कैल्शियम क्लोराइड का वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम 40 प्लस 71 क्लोरीन, तो फिर ग्राम में रखेंगे, और नहीं तो फिर n नंबर ऑफ मोल भी कैलकुलेट करेंगे। अब फार्मूला आप देखिए, यहां फार्मूला यूज्ड, पाई इक्वल टू ICRT, C है आपका C इक्वल टू n बाई वी, पाई इक्वल टू देखिए पाई इक्वल टू I इंटू n बाई वी इंटू R इंटू T, और आपकी सारी वैल्यू गिवन है। देखिए n का वैल्यू आप कैलकुलेट
जो आएंगे वो मोल आंसर। और अगर ग्राम में आप पुट करेंगे, ये W निकालेंगे तो स्मॉल m का वैल्यू, ये स्मॉल m का वैल्यू पुट करेंगे तो आप फिर लिखेंगे ग्राम। अब देखेंगे कि आपका आंसर किसमें बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 25 मिलीग्राम, ध्यान से देखिएगा यहाँ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां लिख दिया assuming that it is completely dissociated, उसमें नहीं लिखा था completely dissociated because in this question the value of I is equal to 2.47, but in this question value of I is not given, assuming that the completely dissociated of the ions of the solute. We potassium sulfate K2SO4 is dissolved in water, dissociated into the ions. So value of I is equal to 3. 2 moles potassium ion and 1 mole of sulfate ion. So total number of moles 3. I का वैल्यू गिवन हो गया। अब आप देखिए अमाउंट, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको फाइंड क्या करना, पाई prepared by 25 milligram of potassium sulfate means small w equal to 25 milligram। आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 25 by 1000 यानी 0.025 ग्राम। इसके बाद 2 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम 2 लीटर वाटर सॉल्वेट का, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड किए 273 मींस 298 केल्विन ये टेम्परेचर। और आर का वैल्यू आप रख दें, आर का वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू आप पुट करें। तो आप देखिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर आपने फॉर्मूला जो यूज करिए same as that of the pi equal to I into C into RT। C into RT। अब आप देखिए टेम्परेचर दिया, गिविंग C इक्वल टू N by V, N इक्वल टू W by M, ये W गिवन है और M की वैल्यू ये देखिए M पोटेशियम सल्फेट K2SO4 हमने यहां पर लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 39 प्लस सल्फर 32 ऑक्सीजन 64 और ये निकल गए आपका M। आप वैल्यू देखिए, W की वैल्यू रखिए D T R और इसके बाद आप फाइंड कर लीजिए P इज ऑस्मोटिक प्रेशर और जो आंसर आएंगे आप उसमें लिखिएगा ATMS, इसलिए कि R की वैल्यू आपका पुट किए हैं एटमॉस्फेयर में। जब R की वैल्यू, R का वैल्यू अगर 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू अगर आप पुट करते R का तो फिर यहां एटमॉस्फेयर नहीं लिख करके आप लिखते पाओ, फिर इसका आंसर पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां I का वैल्यू देखेंगे और ये आप पुट कर करके इसके एग्जैक्ट आंसर